गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी सोनीपत। जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी के चैप्टर 3 की चर्चा करेंगे आज, जो कि जेंडर स्टेरियोटाइपिंग है। मींस लैंगिक रूढ़िबद्धता, हिंदी में इसको बोलते हैं जेंडर स्टेरियोटाइपिंग। लैंगिक रूढ़िबद्धता के नाम से जाना जाता है। तो आइए देखते हैं क्या है इस चैप्टर में। Meaning and definition of gender stereotyping. Gender stereotyping are one-sided and extreme images of men and women which are deployed repeatedly in everyday life. They are found commonly in the mass media because they are operating as widely as understood shorthand. Sociologists often see stereotyping as part of the process by which children are socialized into sex role and by which adults and children are denied opportunities for more individually varied development. Gender stereotypes are over generalizations, individual varied development. Gender stereotype over generalizations about the characteristics of an entire group based on gender. While gender stereotypes have been popularly perceived as having negative connotations, they can also have positive ones as well. So, जेंडर स्टेरियोटाइप जैसे कि लैंगिक रूढ़िबद्धता के नाम से इसको जाना जाता है। रूढ़िबद्धता से अभिप्राय समाज में व्याप्त विभिन्न असामाजिक क्रियाओं एवं कुरीतियों से है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अपने मूल रूप में स्थानांतरित होती रहती है। इनकी सामाजिक उपयोगिता न होते हुए भी वर्ग एवं समुदाय इनको मान्यताएं प्रदान करता है। रूढ़िबद्धता समाज, समुदाय एवं देश के विकास में बाधक है। रूढ़िबद्धता के अंदर होने वाली क्रियाओं को व्यक्ति सामाजिक, समाज, धर्म, ईश्वर और अलौकिक शक्ति से जोड़कर संपादित करता है, जबकि आज की आधुनिकता, विकासशील और मशीनीकरण के युग में इनकी न तो कोई उपयोगिता है और न ही सार्थकता है। इसकी एक डेफिनेशन दी है कुपुस्वामी ने। अकॉर्डिंग टू कुपुस्वामी, इन broad way we can define the stereotype as a false classificatory concept with strong emotional feeling tones regarding other group of people. ऐसे ही एक डेफिनेशन स्मिथ ने दी है। stereotype is a set of beliefs based on inaccurate or incomplete information that is critically applied to a whole group of people. स्मिथ ने कहा है कि रूढ़िबद्धता अंधविश्वासों का एक ऐसा सामुच्चय है जो गलत या अधूरी सूचना पर आधारित है तथा जिसे पूरे समूह के लिए प्रयुक्त किया जाता है। मतलब यहाँ पे ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि मेल और फीमेल जो जेंडर बायस है, जेंडर स्टेरियोटाइप्स है, वो खाली फीमेल के लिए नहीं बल्कि कई जगहों पे वो मेल के लिए भी हमारे समाज के लिए उपयुक्त नहीं है। मेल एंड फीमेल दोनों के लिए कहीं ना कहीं स्टेरियोटाइप और जेंडर बायस बाधक है। किसके लिए? उनकी तरक्की के लिए और उनके विकास के लिए। टाइप ऑफ स्टेरियोटाइपिंग देखते हैं, प्रकार क्या है इसके। स्टेरियोटाइपिंग में बी फॉलो टू टाइप, फीमेल स्टेरियोटाइप एंड मेल स्टेरियोटाइप। The stereotype begins since a child is girl, their tendency is more to girlish things like wear pink clothes, toys, Barbie doll, and all parents are the contributive factor for this stereotyping. For example, women are not as strong as men. Women are supposed to have clean jobs such as secretaries, teachers, librarians. Women are nurses, not doctors. Women are saying more gentle and kind-hearted. Male stereotyping from the beginning, since they are small boys are taught to be to be protective and as defend themselves. Their outfit usually in blue color, which symbolic to a man. Their toys were like trucks, car, robot, and tough game. Mostly boys were aggressive in their playing than girl. For example, men do not help in housework and they are not responsible for taking care of children. Men do dirty jobs such as construction and mechanical, as they are not secretary, teacher, and cosmetology. Men do not cook or
डू क्राफ्ट ऑल्सो। तो यहाँ पे मेल एंड फीमेल के अलग अलग जो काम होते हैं वो बचपन से ही तय कर दिए जाते हैं। जैसे कि जो फीमेल होती हैं वो बारबीज के साथ खेलना पसंद करती हैं, पिंक कलर के क्लॉथ्स उनको पसंद होते हैं। ऐसे स्टेरियोटाइप्स बने हुए हैं, ऐसे रूढ़िबद्धता हमारे समाज में काफी टाइम से चली आ रही है और आज भी वो कंटिन्यू की जा रही है कि जो फीमेल है उनके लिए टीचर्स की जॉब अच्छी होती है, सेक्रेटरीट की होती है, लाइब्रेरियन की होती है ना, नर्सेज अच्छी होती हैं। और फिर मेल के लिए क्या स्टेरियोटाइप बना है कि वो बचपन में ही कैसे हार्ड टॉय से खेलना पसंद करते हैं, टफ गेम पसंद है उनको, ट्रक से खेलते हैं, कार रोबोट से खेलते हैं। और मैन यूजुअली क्या है, अग्रेसिव होते हैं, गर्ल्स सॉफ्ट नेचर की होती हैं। और मेंस की जॉब जो सिलेक्शन होता है वो भी अलग तरीके का होता है, लाइक वो मैकेनिकल लाइन में जाना पसंद करते हैं। तो हमारे यहाँ, हमारे समाज में, हमारी कंट्री में ये स्टेरियोटाइप अभी भी किसी न किसी रूप में चली आ रही हैं। देयर आर फोर बेसिक एग्जाम्पल ऑफ जेंडर स्टेरियोटाइप। फोर बेसिक एग्जाम्पल दिए गए हैं जेंडर स्टेरियोटाइप के, आइए देखते हैं। पर्सनालिटी ट्रेट, वुमेन आर सपोज टू बी शाई, पैसिव एंड सबमिसिव। Women are organized and clean. Men are expected to be tough, aggressive, dominant, and self-confident. Men are lazy and messy too. And domestic behavior, women are supposed to cook, do and do housework. Women are better at raising children. Stay at home is considered mother as better than working mothers. On the other hand, men are better at household affairs. Men cannot cook or care of their children. Men always tell their wives what to do. And third will be occupations. Women are supposed to have clean jobs such as teacher, nurse, secretary, librarian. Consider the woman not good in maths. ऐसे सपोज क्या कहते हैं कि बॉयज जो होते हैं वो किसमें, मैथ्स के सब्जेक्ट में अच्छे होते हैं। जो गर्ल्स होती हैं, गर्ल चाइल्ड होती हैं, वो मैथ्स के सब्जेक्ट में अच्छी नहीं होती हैं। And physical appearance, generally speaking, women are expected to be short and slender, small and delicate. While men are supposed to be tall with broad shoulders. However, physical appearance gender stereotype varies from culture to culture. In culture where men are small in size, masculinity in determined by action macho. Acting macho for men should mean getting involved in fight, drinking alcohol, smoking unfiltered cigarettes, and getting into fight. Female gender stereotype occur for women who act macho in some cultures. Women who smoke, drink, and swear often are considered masculine. मतलब अलग अलग डिफरेंट कल्चर की डिफरेंट डिफरेंट बात की गई है। जरूरी नहीं है कि मेंस ही मॉचो हो वही स्मोकिंग कर सकते हैं। कई जगह पे, कई कल्चर्स में वुमेन्स भी ऐसी देखी गई हैं और पाई गई हैं। सो जो जेंडर स्टेरियोटाइप है इसका इफेक्ट क्या होता है हमारे समाज में, अगर इसको जो है ज्यादा रूढ़िबद्धता है कहीं पे, तो उसका क्या इफेक्ट है मेन और वुमेन दोनों पे ही, उसका क्या इफेक्ट होता है। इसकी बात यहाँ पे बताई गई है कि देखते हैं कि किस तरीके से इफेक्ट करता है। साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल स्ट्रेस, मनोवैज्ञानिक और संवेगात्मक तनाव, साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल स्ट्रेस। लैंगिक रूढ़िबद्धता पुरुषों और महिलाओं को कई प्रकार से प्रभावित करती है। दोनों को सदैव परंपरागत रूढ़िबद्धता के अनुरूप कार्य करने के आधार पर परखा जाता है। पुरुषों को सदैव पुरुषत्व के मानकों को पूरा करने और उनका पालन करने की अपेक्षा की जाती है, किंतु जब वे इन मानकों को पूर्ण नहीं कर पाते हैं तो वे प्रायः निम्न आत्ममूल्यों से प्रेरित होते हैं, पीड़ित होते हैं। यहाँ तक कि पुरुषत्व का मानक सफलतापूर्वक पूरा न कर पाने के कारण कभी कभी मानसिक और भावात्मक रूप से पीड़ित भी हो जाते हैं। दूसरी तरफ सभी महिलाओं से विवाह के उपरांत सदैव बच्चे के जन्म की आशा की जाती है, इसके लिए सदैव दबाव डाला जाता है। ऐसे में यदि महिलाएं अपने करियर को अधिक महत्व देती हैं तो दूसरों के द्वारा उनकी आलोचना की जाती है, जिससे महिलाएं मनोवैज्ञानिक और संवेगात्मक तनाव का शिकार होती है। साइकोलॉजिकल और इमोशनल इफेक्ट, स्ट्रेस जो है वो खाली वुमेन के लिए ही नहीं, मेन के लिए भी है। कई कई जगहों पे मेन से ये एक्सपेक्टेशंस की जाती हैं और फीमेल कैंडिडेट से नहीं की जाती है। इस नेक्स्ट है आपका इफेक्ट ऑन परफॉर्मेंस, उपलब्धि का पर प्रभाव। महिलाओं एवं पुरुषों की उपलब्धियों भी लैंगिक रूढ़िबद्धता के कारण प्रभावित होती है। लैंगिक रूढ़िबद्धता एक अंतर्निहित भय उत्पन्न कर देती है। विभिन्न शोध अध्ययनों में पाया गया है कि रूढ़िबद्ध
नकारात्मक रूप से भय उत्पन्न कर उपलब्धि को प्रभावित करती है। एक उदाहरण यहाँ पे स्पेंसर, स्टील एंड क्विन ने यह साबित किया है कि महिलाएं गणित के परीक्षण में निम्न स्तर का प्रदर्शन करती हैं, क्योंकि उन्हें यह विश्वास दिलाया जाता है कि गणित में अच्छा प्रदर्शन वो कर ही नहीं सकती हैं। इसी प्रकार पुरुषों का भाषा संबंधी परिणाम बहुत ही बुरा आता है। ये नकारात्मक रूढ़िबद्धताएं उपलब्धि को तब तक प्रभावित करती हैं जब तक व्यक्ति स्वयं के विचारों से इन्हें निकाल नहीं दे और सकारात्मक विचार ना करे। मतलब कि पहले से ही रूढ़िबद्धता बना दी कि फीमेल कैन जो वो है वो मैथ्स में अच्छा नहीं कर सकती। ये एक स्टेरियोटाइप बना है। अगर हम अपने मन से ये निकाल दे, स्टेरियोटाइप को साइड में रख दे और अपना फोकस केवल उसी स्टडी में करें, तो क्यों नहीं बेहतर कर सकती हैं। इसीलिए मेल के लिए कहा है कि वो लैंग्वेजेस नहीं सीख पाते हैं जल्दी। तो यहाँ पे ये भी कहा गया है कि अगर मेन भी अपनी स्टेरियोटाइप को बाहर निकालते तो वो ऐसा कुछ नहीं है। ये एक नकारात्मक नेगेटिव पॉइंट है और कुछ नहीं है। नेक्स्ट है लोअर मैरिटल सेटिस्फैक्शन, निम्न वैवाहिक संतुष्टि। लैंगिक रूढ़िबद्धता के कारण पुरुषों एवं महिलाओं के मध्य उत्तरदायित्वों का वितरण असमान रूप से किया जाता है। महिलाओं को अक्सर प्रत्यक्ष देखभाल तथा बच्चों के साथ अधिक समय बिताने की बात कही जाती है। शिशु देखभाल और शिशु के स्वास्थ्य तथा कल्याण के विषय में सोचना आदि कार्य प्रदान किए गए हैं। गृहस्थ कार्यों एवं बाल संरक्षण आधारित या असमान वितरण वैवाहिक संतुष्टि का असंतुष्टि का कारण बनता है। फीमेल ही ऐसा बोला जाता है कि फीमेल ही बच्चे की देखभाल करेंगी, वही बच्चों को फीडिंग कराएंगी, घर की साफ सफाई रख रखाव का काम पहले से ही ऐसे स्टेरियोटाइप बना हुआ है कि महिलाएं ही करेंगी। तो कहीं ना कहीं ये उनके वैवाहिक जीवन को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है आपका कपल एंड फैमिली इंटरेक्शन आर इफेक्टेड, युगल एवं परिवार की अंतःक्रिया भी प्रभावित होती है। लैंगिक रूढ़िबद्धता युगल एवं पारिवारिक अंतःक्रिया को भी प्रभावित करता है। लाइक गृहस्थ कार्य का विभाजन लिंग आधारित होता है, जिसमें पुरुष सदैव घर के बाहर जाने एवं परिवार के लिए रोजी रोटी कमाने के लिए घर से बाहर रहकर कार्य करता है। जब पुरुषों में वर्चस्व की भावना उत्पन्न करता है तो वह महिलाओं को अधीनस्थ के रूप में समझता है। सो कहीं ना कहीं फीमेल को घर के काम के लिए स्टेरियोटाइप और जो मेल है वो बाहर के जो सामान लाना बाहर के काम है उनके लिए किया। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं युगल एवं परिवार की अंतःक्रिया भी प्रभावित होती है। कपल एंड फैमिली इंटरेक्शन इससे कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रहा है। तो ये क्या थे कुछ इफेक्ट ऑन जेंडर स्टेरियोटाइपिंग। अब कुछ इफेक्ट और है। द इफेक्ट ऑन जेंडर स्टेरियोटाइपिंग कैन बी सीन इन वर्क प्लेस विद द फॉलोइंग एविडेंसेस। जो जहाँ पे महिलाएं काम कर रही हैं पुरुषों के साथ, वहां पे भी कई स्टेरियोटाइप देखी गई है, जेंडर स्टेरियोटाइप। आइए देखते हैं क्या क्या जेंडर स्टेरियोटाइप लीड टू वेजेस डिस्क्रिमिनेशन। मतलब कहीं ना कहीं जो वेतन मान है उसमें भी डिस्क्रिमिनेशन देखा जाता है जेंडर बायस या जेंडर स्टेरियोटाइप के कारण। Gender stereotype also lead to resulting discrimination in employee hiring and firing and promotion and practices. Promotion में and employer hiring में भी stereotyping देखी गई है। Gender stereotyping also lead to sexual harassment and pregnancy discrimination. Sexual harassment कई workplace पे भी gender stereotype का कारण बने हैं। Even with progress in the legislative and in the court, gender stereotyping and its resulting discrimination is still significant roadblock to women's success in the workplace. In the organization as a whole, gender stereotyping can do the following. लॉस्ट प्रोडक्टिविटी लॉस्ट होती है एक तो, अगर आप ऐसे इस तरह के स्टेरियोटाइपिंग वर्क प्लेस पे करते हैं तो। प्रमोशन ऑन द बेसिस स्टेरियोटाइप रोल्स एंड डिस्ट्रक्शन, हानि होती है। मतलब आप कहीं ना कहीं इन स्टेरियोटाइप्स को खत्म करके वर्क प्लेस पे आप इफेक्टिव और हेल्दी एनवायरनमेंट बना सकते हैं अगर मेल और फीमेल दोनों वहां पे इकट्ठे काम कर रहे हैं। ये कुछ इफेक्ट थे जो जेंडर स्टेरियोटाइप के हमारे वर्किंग प्लेस पे समाज में पड़ रहे हैं। जिसको हटाने का काम कौन करेगा? आज की पीढ़ी ही करेगी। अब ये समाज नहीं करेगा। हम ये नहीं कहते कि समाज से ये शुरू होगा, ये हमारे घर से ही स्टार्ट होगा। हमें हमें खुद को इसलिए सोच के चलना है आगे जो हमारे बच्चे हैं, हमारे घर में जो बेटा और बेटी है, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी दे। उनकी पढ़ाई में, उनके काम में, उनकी डेली रूटीन में हमें क्या करना पड़ेगा? इक्वालिटी लानी पड़ेगी, तभी ये स्टेरियोटाइपिंग कहीं ना कहीं खत्म होगी। कैसा लगा मेरा लेक्चर? आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग।
Keep growing. Have a nice day. Bye bye.